chapter fifth na, first term containing how many chapters? First, second, third, fourth, fifth, sixth and 12th. 7 chapters. So first, second, third, fourth are completed na. Now fifth, sixth and 12th. Fifth is what? Continuity and differentiability. So in this chapter main thing is what? Finding limit. Limit find करना main है. So you have already studied about limit in class 11th. 11th में limit निकालना सीखे थे. Left hand limit and right hand limit. If both limit exist, then we say that limit exists. Definition started. तुम ऑनलाइन भी नहीं थी ना कल? क्यों? रहना था ना? Continuity at a point, continuity in an interval, continuous function. So that means generally continuity पढ़ना है फिलहाल. Okay. So continuous. When we say that function is continuous, function generally mathematics पढ़ेंगे ना? Mathematics में always we are having a function y equal to fx. General notation. This is general notation. Function means fx. X what? X is independent variable. This is means this produce some value corresponding to value of x, and that value is denoted by y. Now we have two variables. One is independent, another is dependent. Also we can write x equals to in other format g of y. If we write like this now, then y is independent and x is dependent. General notation are like this. Y equal to fx is function. And geometrically we can also represent this function as graph. X की value इस line में, y की value इस line में. So generally this is x, this is for y, and we can represent this graphically. Graphically represent करने से क्या होता है? In general this represents a curve. Any type of curve. Curve means what? The value of x lying in this line corresponding to this value. What is the value of function? That is y. So ये value x का है. That means this is the value of x, and this value is what? Y. Corresponding to each value there is a value for y. That's why graph is like this. Suppose function means having some domain. डोमेन होता है. अब एक फंक्शन में जो डोमेन है उसी डोमेन में भी एक इंटरवल है. तो यहाँ पर कोई भी एक इंटरवल है. सपोज यहाँ से यहाँ तक डोमेन है. सपोज यहाँ से यहाँ तक डोमेन है. डोमेन मीन्स फॉर दीज वैल्यूज फंक्शन इज डिफाइंड. तो इस वैल्यू पे ग्राफ ड्रॉ हो. नाउ इन बिटवीन सपोज देयर इज ए पॉइंट. इन बिटवीन देयर इज ए पॉइंट. एक पॉइंट ए. At this point whether function is continuous or not. इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है. देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना. अब डेफिनेशन तो एक लाइन है, लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. बट क्या होता है? लिमिट पहले हम पढ़े 11th क्लास. लिमिट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है, राइट हैंड लिमिट भी होता है. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट साइड से tending to a. Left side से tending to a means suppose this is 2. Then tending to 2 means what? From left side tending to 2. Tending value to 2 from left side. That means what? X की जो value है ना, x की जो value है, first you can put x equal to 0, then x equal to 1, and then x equal to 1.5, x equal to 1.6. and go to the value at 2 from left side. Also from right side means suppose there 4 and 3, first 4, then 3.5, then 3, then 2.5 and so on. तो right side से भी आ जा सकते हैं. तो क्या होता है? इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू कंसाइड करने तो लिमिट एग्जिस्ट होता है. मीन्स इस साइड से जो वैल्यू जिस वैल्यू को टेंडिंग कर रहा है, मैथमेटिक्स में टेंडिंग यूज होता है ऑलवेज. टेंडिंग वैल्यू. सो इधर का टेंडिंग वैल्यू, इधर का टेंडिंग वैल्यू इक्वल टू एट दिस पॉइंट. टेंडिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? फंक्शन का टेंडिंग वैल्यू.
and value of the function at that point. You define same one. That means इधर का tending value and value of the function should be equal. अगर ये equal हो गया, that means इधर से जो कर्व आया और इधर से जो कर्व आया उसमें ब्रेकिंग नहीं है, ये है कंटिन्यूटी. और geometrically we can say a function is continuous in its domain if its graph can be drawn without lifting the pen. ऊपर बिना हाथ उठाए कंटिन्यू हम बना सके तो कंटिन्यूस, इसका मीनिंग है ज्योमेट्रिकली ये डेफिनेट हो. क्लियर? तो मैथमेटिकली डेफिनेशन किस पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है नहीं कि ये बताया है. एंड नाउ इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ दिस डोमेन, डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस अगर है तो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. सो कल डेफिनेशन क्या बताया था? कंटिन्यूटी at a point first in an interval in domain means जो भी फंक्शन का डोमेन है पूरे में कंटिन्यूस, means at all points of its domain function is continuous. That is, we can say function is only continuous. First of all, function is continuous at a point. डेफिनेशन क्या है? पॉइंट कहाँ का है? पॉइंट फंक्शन के डोमेन का है. पॉइंट में भी एनी पॉइंट इन बिटवीन द डोमेन ऑफ द फंक्शन. सपोज पॉइंट इज ए, सपोज पॉइंट इज ए. सो ये डेफिनेशन था. लिमिट, उस पॉइंट में लिमिट का एग्जिस्टेंस और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए. तो एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसके अंदर क्या क्या है सब पता है. लिमिट एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, देन वी से दैट दिस इज प्योर लिमिट. दिस लिमिट इज इक्वल टू व्हाट? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. मतलब फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट, ये दिस इज द डेफिनेशन एट x इक्वल टू a इज ए पॉइंट. अब यहाँ पर जो मेन अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ना वो बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना. हर क्वेश्चन में बोले ये क्यों कर रहा है, हर क्वेश्चन में ये क्यों कर रहा है ऐसा लगेगा. बट लिसन, लिमिट निकालते समय हम लोग क्या करते हैं? लिमिट निकालते समय सीधा वैल्यू रख देते हैं, सीधा वैल्यू रख देते हैं और वैल्यू आ गया तो दैट इज द लिमिट. 11th क्लास में लिमिट किसी ने ध्यान से पढ़े हो? पहले बताओ लिमिट कैसे फाइंड होता है. लिमिट फाइंड करने जाते हैं, जैसे ये लिमिट निकाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर. इसका लिमिट फाइंड करना है. फंक्शन इज x स्क्वायर. क्या करेंगे? ये 2 को यहाँ रखना है. अगर वैल्यू मिल गया दैट इज द लिमिट. और कभी कभी ये हो जाता है x स्क्वायर अपन x माइनस 2, आपको नहीं मिलेगा. अब मिलेगा लिमिट. लिमिट वाज व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. एग्जैक्ट दैट वैल्यू, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट. वहाँ ये होना चाहिए. ये लिमिट निकालने का बहुत सारे टेक्निक है, आगे और रूल है, बहुत सारे रूल है. बट लिमिट फाइंड करने का टेक्निक अब क्लियर है ना. फंक्शन का डेफिनेशन अगर ब्रेकिंग करके दिया हुआ है, ब्रेकिंग मींस यू नो ये जैसे इंटरवल है, जैसे 0 to 10 ये इंटरवल है, ये दिस इज द डोमेन. सपोज दिस इज डोमेन. अब इस डोमेन में फंक्शन का डेफिनेशन 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स में भी देते हैं. किस टाइप से? 0 to 3 and 3 to 10 मींस fx is equals to क्या लिखना है? सम वैल्यू व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 3. इस पार्ट में फंक्शन का वैल्यू कुछ अलग है और इस पार्ट में फंक्शन का कुछ वैल्यू अलग है. वो पार्ट वाइज डेफिनेशन होगा. जब भी पार्ट वाइज डेफिनेशन होगा, जिस पॉइंट पे ब्रेक है उस पॉइंट पे फिर लेफ्ट राइट आएगा. इफ देयर इज नो ब्रेक, ब्रेकिंग पॉइंट अगर नहीं है ना तो लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लिमिट यू कैन फाइंड. ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो उसी पॉइंट पे लेफ्ट आ जाता है, राइट आएगा. उस केस में क्या है? लेफ्ट भी निकालना है, राइट भी निकालना है. अगर दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट. और वो वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. तो कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कंटिन्यू फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज डिफाइंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज डिफाइंड फर्स्ट. देन limit of the function at
is exist and both are equal. Not continuous, not continuity होने के लिए क्या क्या है? Not continuous function, the value of the function is not defined at that point. जैसे यहाँ पर है x equal to 2 भी डिफाइन नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा ना, डिफाइन नहीं है. और ऐसा भी हो सकता है कि रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा हो वैल्यू रखने के बाद. रूट के अंदर अगर x माइनस 2 आया तो x कैनॉट बी इक्वल्स टू 1, तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा, बट रियल केस चल रहा है ना, रियल फंक्शन का किया जाएगा. तो ये सब नॉट डिफाइन. नॉट डिफाइन हुआ तो कंटिन्यूटी नहीं हो सकता ना, तो डिफाइन होना है और इसके इक्वल होना है तभी तो कंटिन्यूस होगा. डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी व्हाट? जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है. क्लियर है ये? और फिर इंटरवल तो बहुत सिंपल है, बताया था फर्स्ट पॉइंट पे देखना है. अब इंटरवल मींस सपोज होल रियल लाइन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन और इसको टू पार्ट में करके डेफिनेशन दिया हुआ फंक्शन. किसी एक इंटरवल में टेस्टिंग करना है, सो इंटरवल के हर पॉइंट पे होना चाहिए. दिस इज कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a. ओके, एंड continuous in open interval. This for all a belongs to ab. ये नोटेशन जो दिया है अल्फा ले लो इसका, एक अलग नोटेशन है. इसका क्या मीनिंग है? इनवर्स यू कैन से मींस ये ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. For all alpha belongs to AB, इस इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी होनी चाहिए. फिर इंटरवल में कंटिन्यूस. क्लोज के लिए क्या बताया था, याद है किसी को? क्लोज के लिए, क्लोज मींस व्हाट? ओपन तो है, साथ में A भी है B भी है, दोनों. सो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, पहले ये होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन. कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल and then a पे, because closed है ना तो लेफ्ट साइड नहीं है, so right hand limit is equals to a पे. एक a पे सेकंड कंडीशन क्या होना है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस राइट हैंड लिमिट is equals to f a. क्लोज्ड में लेफ्ट साइड नहीं है, so a पे a पॉइंट इज आल्सो इंक्लूडेड ना. ओपन के लिए तो बता दिया, ये पे बताना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पे लेफ्ट नहीं है, राइट है, ओनली राइट. सो राइट हैंड लिमिट निकालना है ये पे एंड एफ ए की वैल्यू निकालना, बोथ बी. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट, इसका राइट तो नहीं है, तो लेफ्ट लिमिट एट बी. थर्ड क्या होना चाहिए? लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ बी. यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट. So these three conditions, if these three conditions are satisfied, then function is continuous in closed interval. Only in open interval means ये वाला, ये interval है. And function is only continuous function. Continuous function कब बोलते हैं? If function is continuous at every point of its domain. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई डोमेन. डोमेन क्या है ये आइडेंटिफाई करना है. क्लियर है? अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना कल. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्यूशन बता रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड देखो. एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 at x = 3. ओके, सेकंड क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड. फंक्शन इज व्हाट? f(x) equals to 2x² - 1 and at x equals to 3. It is always continuous. ये मैंने अभी बता दिया, it is always continuous because क्यों? ये 3 पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं. तो इसमें जो अभी मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया ना, वो आपको समझ में आएगी नहीं उसी का. अब इसमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी पूछा है ना, सो क्या क्या प्रूव करना चाहिए? वही है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इक्वल्स टू f3. ये होना चाहिए.
पहले वो मेन जगह पे जाओ, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 पे है ना, ये था ए पे डेफिनेशन दिया था 3 पे है। नाउ यू हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, f3 भी निकालो, ये निकालो, वो तो इजीली आ जाएगा, बिकॉज ये 2x² - 1 इस फंक्शन का डोमेन क्या है पहले बताओ, कंप्लीट रियल नंबर, बिकॉज एट एवरी पॉइंट at every real number it is defined, so completely whole real lines is its domain, but एक point बता रहा है 3 पे continuous है, so for proving it is continuous at 3 you have to prove this, ये definition, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, लिमिट निकालते समय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब जरूरत पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट when function is given just like breaking at that point, breaking रहेगा, इसके लेफ्ट साइड में ये वैल्यू है, राइट साइड में ये वैल्यू है, तब लेफ्ट हैंड राइट हैंड आता है, इसमें नहीं जरूरत है, तो सीधा निकलेगा, जैसे इसका निकलेगा वैसे इसका भी निकलेगा। सो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx means this 2x² - 1, now you can put x equal to 3 if you can get a definite value, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, अगर डेफिनेट वैल्यू मिल जाए तो रख दो, और नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, ये है लिमिट निकालने का रूल। ओके, सो हियर यू कैन डू इट ना, 3² - 1 17 ना। Similarly, function is defined at x equal to 3, it is very clear, you can put x equal to 3 here, सेम आएगा ना प्रोसेस, तो दोनों इक्वल, अब दोनों इक्वल है तो किसके इक्वल हो गया 17, so function is continuous at x equal to 3, okay। Now see question 3, examine the following function for continuity, see x - 5, ये तो सिंपल है इसी टाइप का, फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस, देखो fx इक्वल टू क्या लिखा है x - 5, सेम x - 5 मतलब इस जगह पे क्या लेना है x - 5, दैट मींस व्हाट, x - 5 लिया, ऑलवेज कंटीन्यूअस, बिल्कुल ये डिस्कशन है, यहाँ x - 5 कर, और जो यहाँ किया बिल्कुल उसी प्रोसेस में करना है, और ये कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेशन, बट पॉइंट नहीं दिया कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना, दिया है क्या पॉइंट, दैट मींस इन इट्स होल डोमेन कंटिन्यूटी टेस्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट ही ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है x - 5, अब ये नहीं दिया हो, अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, अब बुक में अलग अलग किसी सॉल्यूशन अलग अलग टाइप से लिखते हैं, खुद को समझ में आ गया, अपना राइटिंग लिखोगे उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हम क्या जानते हैं, तो फंक्शन में कोई पॉइंट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, फंक्शन दिया है, सो जस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, ओनली कंटिन्यूस मीन्स फंक्शन अगर है तो उसका डोमेन क्या है, डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होना है, क्लियर है। So it is clear that its domain is complete real numbers, okay। So for continuity of this function, it should be continuous at each point of the real number, at every real number, सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लेना है कि let this be an arbitrary real number, arbitrary means कोई भी रियल नंबर, जब हम सॉल्व करेंगे ना उसमें क्या कंडीशन रहेगा, इट में भी एनी रियल नंबर, तो उस रियल नंबर पे कंटिन्यूस अगर दिखा दोगे तो कंटिन्यूस, आर्बिट्री मींस में भी एनी रियल नंबर। सो इसका जो शॉर्ट राइटिंग है ना, शॉर्ट राइटिंग कैसे लिखना है, इट्स डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे लिख दो, राइट है शॉर्टकट में, सेट ऑफ रियल नंबर, राइटिंग कैसे होगी, सेट ऑफ real numbers are, so let C be any real number, let C be any real number means एक हर नंबर पे दिखाना है, तो C be any real number, then limit x tending to C पे कंटिन्यूटी लिखना है, fx is equals to limit x tending to C, x - 5 equals to C - 5, C is a real number, so C - 5 equal 5, so its value is C - 5,
ओके आल्सो और क्या जरूरत पड़ता है सी पे कंटिन्यूस दिखाने के लिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी आल्सो एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5 इसमें रखेंगे तो आएगा मीन्स ये जो सी रखना है उस समय रखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये फाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा करके ऐसा पर यहाँ तो हो जाएगा therefore limit x tending to c fx is equals to fc for all c belongs to r for all c belongs to r means any real number के लिए ये condition satisfy होगा so implies fx is continuous at each real number इसका मतलब क्या होगा पूरे डोमेन में कंटिन्यूस हो गया implies fx is कंटिन्यूस बस ये लिखते छोड़ो कंटिन्यूस ओनली और कुछ नहीं लिखना क्योंकि डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा मींस फंक्शन इज कंटिन्यूस ना यही राइटिंग सभी के लिए होगा चारों के लिए बट ऑलवेज ना सेकंड देखो सेकंड में क्या लिखा है 1/x - 5 एंड कॉमा लगा के x इक्वल टू नॉट 5 लिखा है इसमें क्या लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन अगर सेकंड लिया जाए सेकंड में 1/x - 5 साथ में ये भी लिखा है x इक्वल टू नॉट 5 इट इज गिवन ना दैट मींस इट्स डोमेन इज व्हाट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5 मींस जब आप c लेंगे ना c इज नॉट इक्वल्स टू 5 ये बिल्कुल यही लॉजिक चलेगा इसमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर इट्स डोमेन इज any real number except 5 clear so मतलब 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है so let c be any real number and वो राइटिंग मेथड हो ऐसा भी लिख सकते हैं मैंने हमने c एक ऐसा नंबर लिया जो 5 नहीं है बाकी एनी नहीं अब यही देखना है c लिख दिया यहाँ पर 1/, ये आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/c - 5 इट एग्जिस्ट बिकॉज c इज नॉट इक्वल टू 5 ये एग्जिस्ट है c इक्वल टू 5 नहीं है तो एग्जिस्ट है c इक्वल नॉट 5 since c इक्वल टू नॉट 5 since c इक्वल टू नॉट 5 ये लिखने का रीजन क्या है कि जब हम c को यहाँ रख रहे हैं एनी रियल नंबर बट वो 5 नहीं है सो एग्जिस्ट है नंबर एग्जिस्ट सिमिलरली ये भी है अब दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रियल नंबर -5 यू कैन राइट लाइक दिस ना आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर से 5 नहीं है 5 को हटा सो ये हो गया एट ईच रियल नंबर एक्सेप्ट 5 सो fx is continuous इसके डोमेन में कंटिन्यूस है सो बाय दिस वे यू कैन राइट आल्सो फॉर थर्ड देखो थर्ड में क्या लिखा है x² - 25/x + 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज नीचे 0 आ जाएगा सो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या रहेगा ऊपर x² - 25 लिखा है ना x - 5 और x + 5 एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यू कैन कैंसिल आउट और फिर सॉल्व हो जाएगा इजीली इसमें भी क्या नहीं है x इक्वल टू नॉट -5 बिल्कुल वही इसी स्टेप पाएंगे और यहाँ जब सॉल्व करेंगे ना यहाँ पर उस समय एक फैक्टर को ऊपर नीचे से कैंसिल आउट करना और इजीली वैल्यू आ जाएगी 7 सिमिलरली नाउ mod x - 5 ये mod x - 5 को देखो इसकी वैल्यू को whenever you get mod in function just first of all you have to remove this mod by using the definition of modulus function mod जब रहता है ना तो modulus को ब्रेक करते हैं modulus का डेफिनेशन सबको पता है ये जो मैं बता दिया हूँ अभी यही रूल फॉलो करोगे ये 12 तक क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा अब ये मॉडुलस वाला देखो मॉडुलस वाले नहीं वो वही टेक्निक है 1 by 1 तो प्रैक्टिस के लिए दिया रहता है सो मॉडुलस जब भी मॉडुलस सामने आता है ना मॉडुलस को ब्रेक करना है सो हियर d ना ये d हियर fx equals to x minus
5. Now you know mod x equals to what? Minus x, x less than 0 and x greater than equal 0. यही होता है ना मॉडुलस का डेफिनेशन. इधर देखो, इधर ध्यान दो. हाँ, मॉडुलस का डेफिनेशन mod x equal to minus x if x less than 0 and mod x equal to plus x if x equal 0 and x greater than 0. यही होता है ना. Now suppose ये x के जगह पे ये सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू. सो mod को हटाना है. सो क्या होगा? As it is x minus 5 is less than 0. ये लिखना है. ये डेफिनेशन लगाया. मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी पूरा ये सिंगल ले लो. ये क्वांटिटी यहाँ रख दिया, ये लेस देन 0 है तो ये एंड माइनस ऑफ x माइनस 5. तो इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव. इफ x माइनस 5 इज, ये मॉडुलस का डेफिनेशन अप्लाई किया. वहाँ ओनली सिंगल x है, यहाँ पर कंप्लीट ये वैल्यू. सो ये ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ. ये क्या हो जाएगा? 5 minus x और यहाँ पर x minus 5. ये if x less than 5 and if greater than equal 5. अब ये फंक्शन है, ये बन गया फंक्शन. अब देखो ये बाइफर्केशन आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया. ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, मॉड को ब्रेक किया. नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कब होगा? ओनली कंटिन्यूअस, किसी पॉइंट पे नहीं बताया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन गिवन है, इसका डोमेन क्या है? होल रियल नंबर्स. बिकॉज x की वैल्यू क्या है? लेस देन 5. 5 से लेस इन माइनस इनफिनिटी एंड इक्वल 5 दिया और ग्रेटर देन 5 प्लस इनफिनिटी कर. कंप्लीट रियल नंबर इज इट्स डोमेन. क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने कंडीशन होंगे? 3 कंडीशन. अब यही चीज समझना है, हर क्वेश्चन में यही किया होगा. कंटीन्यूअस प्रूफ करना मीनिंग क्या है? डोमेन के हर पॉइंट पे होना है. नाउ डेफिनेशन इज गिवन, बाइफर्केशन है इसमें. किस पे ब्रेक हुआ? 5 पे. 5 पर ब्रेक हुआ. अब सपोज इसका डोमेन कंप्लीट रियल नंबर्स है. ये तो क्लियर है. होल रियल लाइन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी. बट ये है 5. और 5 के लेफ्ट साइड में वैल्यू ये है, राइट साइड में वैल्यू ये है एंड 5 पर भी वैल्यू ये. क्लियर? ये बाइफर्केशन है इसमें. अब इस एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स डोमेन. इस डोमेन से कोई भी एक पॉइंट ले लो तो उस पॉइंट पे भी 3 कंडीशन अप्लाई होगी. दैट पॉइंट मे बी इक्वल्स टू 5, मे बी लेस देन 5, मे बी ग्रेटर देन. तो 3 कंडीशन विल बी देयर. समझ में आया? 3 कंडीशन विल बी देयर. सो ये 3 स्टेप में सॉल्व. हमको क्या शो करना है कि इफ वी टेक ए नंबर लेस देन 5 देन कंटीन्यूअस. इफ वी टेक ए नंबर इक्वल 5 देन कंटीन्यूअस. इफ ए नंबर टेकिंग ग्रेटर देन 5 देन आल्सो कंटीन्यूअस. 3 कंडीशन में कंटीन्यूअस. क्लियर? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो गया. ये लिखने के बाद अब इस कंडीशन में जो राइटिंग मेथड होगा, अब क्या मेथड होगा? डोमेन. क्लियरली इट्स डोमेन इज all real numbers. Set of real numbers complete. Okay, but यहाँ पर बाइफर्केशन है तो हमारे पास 3 कंडीशन आएगा. So इस टाइप से स्टार्ट होगा. तो let k be any real number, then केस फर्स्ट केस में क्या आएगा? ये लेस देन 5. सेकंड केस में क्या आना है? के इक्वल 5 इफ. तो एक केस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस में क्या आएगा? के लेस देन 5 हो सकता है. सेकंड केस में क्या आएगा? के इक्वल 5 हो सकता है. थर्ड केस में के ग्रेटर. सो 1 by 1 ये शो करना है. ओके, नाउ फंक्शन इज व्हाट?
इस लाइन के बाद ये लाइन, फिर ये लाइन, ये दिस इज फंक्शन। तो ये फंक्शन यहाँ लिखा है fx इक्वल्स टू 5 minus x and x minus 5, x is less than 5 and x is greater than equal 5. This is our function. Now ये स्टेप बाय स्टेप अब इसको दिखाना, तीनों में वही। अब यहाँ पर भी एक चीज अभी बोल रहा हूँ, उसको बुक में लिखता है ना तो क्यों लिखता है ये समझ में आएगा। देखो ये एक टिपिकल पार्ट है, बता आगे जब डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे ना बहुत इजी है डिफरेंशिएशन करना है, बस sin का cos x स्क्वायर 2x यही सब आएगा। बट यहाँ पर ध्यान देना है ना, इसमें मेन डेफिनेशन इफ k is less than 5 then यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ये जो बना रहा हूँ 5 है और 5 का लेफ्ट साइड है, 5 का राइट साइड है। यू टेक ए नंबर व्हिच इज लेस देन 5, यहाँ पर हो, 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 5 के कितने नजदीक हो, और जितने भी नजदीक जाओ, बिकॉज देयर इज ए रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, इनफाइनाइटली रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर लो उसके बीच में एक रियल नंबर होता है। सो ये जो लिमिटिंग केस होता है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड, यहाँ पर कोई भी नंबर लोगे, लेफ्ट साइड लो चाहे राइट साइड लो, when k is less than 5 वो नंबर यहाँ भी हो सकता है, 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 इसके जितने भी नजदीक जाए, बट उसके राइट साइड में भी बिफोर 5 अनदर रियल नंबर। अब ये कंडीशन जब लगाते हैं कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इज आल्सो ए रियल नंबर, तो वो तो फिर इनफाइनाइट नंबर आ जाता है। सो यहाँ लेफ्ट और राइट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सेम काम करेगा। व्हेन नंबर इज लेस देन 5 सो लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सेम ग्रेटर देन के लिए भी लेंगे तब भी लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लेफ्ट लोगे तो दोनों बार ये यूज करना पड़ेगा। क्यों? लेफ्ट साइड में रहने से भी उसका दोनों तरफ वो एक ही तरफ रहता है, जहां के लिए ये वैल्यू है। राइट में भी जाओगे तो वही कंडीशन है, बट 5 में जाएंगे तब लेफ्ट आएगा और राइट आएगा, इक्वल 5 लेंगे तब उसका लेफ्ट आएगा और राइट आएगा। सो जब अभी हम सॉल्व करेंगे ना इस नंबर के लिए, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों केस में यही यूज होगा, राइट में भी दोनों केस में यही यूज होगा, बट 5 में दो, एक बार लेफ्ट में ये यूज होगा, एक बार राइट में, एट इक्वल 5। क्लियर हुआ? ये मैटर हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कब लेफ्ट राइट यूज करते हैं कब नहीं करते हैं। क्लियर है? सो यहाँ क्या होना है देन, लिमिट x टेंडिंग टू k, x टेंडिंग टू k, क्योंकि k नंबर लिया ना, k इज लेस देन 5, fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू k, fx मींस अब x k कौन सा नंबर है जो 5 से लेस है, तो ये वाला है, वो लेफ्ट राइट नहीं रहेगा, इसलिए लेफ्ट राइट नहीं लिखा। सो x माइनस नो 5 माइनस x दिस इज इक्वल टू 5 माइनस k। आल्सो क्या लिखना है, f k की वैल्यू डिफाइन k लेस देन 5 एंड f k इक्वल टू व्हाट, क्या होगा f की वैल्यू बताओ, इसको समझना ही मेन है। ये एक ऐसा नंबर है जो 5 के लेफ्ट साइड में है, तो यहां से कौन सा यूज करना पड़ेगा, ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा ना, बस बस वही चीज में क्या लिखना है, हो गया कंटिन्यूअस, लिमिट x टेंडिंग टू k fx इक्वल्स टू f k। अब ये लिख दिया fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 5, ये पहला कंडीशन। अब इक्वल के लिए करना है तो इक्वल के पहले ग्रेटर के लिए भी कर लेना, ग्रेटर के लिए पहले कर लेना, यही करना तो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है।
सेकेंड केस हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 5 या x माइनस नो a माइनस 5, और यहाँ पर भी बिकॉज वो वाला यूज होगा नीचे वाला, सो k माइनस 5 दोनों इक्वल लिख दिया। लेस देन में क्या लिख देना है, दो कंडीशन खत्म, लेस देन में भी कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन में भी कंटिन्यूअस। क्लियर। अब थर्ड केस क्या लेना है, अब लेफ्ट साइड राइट साइड पहले में लेस देन था, बाद वाले में ग्रेटर देन। बाद वाला तो मैं डायरेक्ट लिख दिया ना, फटाफट कर दिया ना। पहले लेस देन था, वहां पर रियल नंबर ग्रेटर देन, वो लेस देन था। सेकंड में एज इट इज सिमिलरली लिख लो, उसमें इसके ऊपर वाले की जगह नीचे वाले का यूज किया है, और ग्रेटर देन के लिए। अब इक्वल के लिए आएगा, अब इक्वल के लिए आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज होना है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये है ना। लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग यूज होगा। तो यहां पर लेफ्ट राइट दोनों निकालना पड़ेगा। Yes, start. Then limit x tending to k. This means 5. अब देखो k इक्वल टू 5 है ना, k इक्वल टू 5 है, सो k इक्वल या 5 ले लो, एक ही बात है ना। k इक्वल 5 है, सो 5 लिख सकते हैं, k के लिए। सो नेगेटिव लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है, राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। सो fx लिमिट x टेंडिंग टू 5, ये 5 माइनस का मीनिंग क्या है, ओनली फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय तक ही रहता है। सो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से वो ये 5 माइनस x आएगा, 5 माइनस x, एंड यू कैन राइट यहाँ पर माइनस साइन को लिख के भी रख सकते हो, बट 5 को ही रखना है। सो 5 माइनस 5 0, and right hand limit also find x minus 5 okay। k means 5, ये कहां से इक्वालिटी फंक्शन का वैल्यू है। सो f k मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k, k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 के केस में x इक्वल टू 5 के केस में भी ये यूज होगा, x माइनस 5। सो f k f5 5 माइनस 5 और तो ये 3 स्टेप लिखा, तो तीनों केस में क्या हो गया, कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k इक्वल्स टू 5, ये ऐसा लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन implies fx is continuous at 5 पे कंटिन्यूअस है, 5 के लेस पे कंटिन्यूअस है, 5 के ग्रेटर पे कंटिन्यूअस है। दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच रियल नंबर, दैट इज इट्स इन इट्स होल डोमेन। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वैसे भी मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, यू कैन प्रूव इट, साइन इज भी कंटिन्यूअस होता है। सो ये जो स्टेप है, ये स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, कैसे लेफ्ट ले रहे हैं, कैसे राइट ले रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। और लेफ्ट राइट कब आता है, जब बाइफर्केशन होगा तब, बट मॉडुलस अगर गिवन होगा क्वेश्चन में मॉडुलस x बाई x भी हो सकता है।
सो यू कैन ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, क्योंकि मॉड को तो ब्रेक कर ही सकते हैं बाय डेफिनेशन। अब यहाँ भी वही किए थे हम लोग। तो ब्रेक करोगे, जैसे ब्रेकिंग आएगा, ब्रेक किस पॉइंट पे, उस एक ही पॉइंट पे अगर ब्रेक है, मे बी 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ब्रेक है, अगर 3 पॉइंट पे ब्रेक है तो 5 केसेस आते हैं, और ज़्यादा पॉइंट पे होगा तो फिर केस बढ़ जाता है। एक पॉइंट पे ब्रेक हुआ तो कितना हो गया 3, 2 पॉइंट पे होगा तो 5 केस आएगा। इसमें आएगा ना ये क्वेश्चन में, ये 7, यू कैन सी 7।